तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम वीक्स तक प्रिपेयर किए हो, जेन्युइन एफर्ट डाले हो, मगर 2 से 3 मिनट में ही सब कोलैप्स हो गया? नहीं, मेरे साथ हुआ है। मैंने महीनों तक प्रिपेयर किया था, महीनों तक एफर्ट डाला था, मगर शुरुआत के 2 से 3 मिनट में ही सब खत्म। कुछ भी नहीं, सब खत्म। सब। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा मैंने क्या गलती किया था और ऐसा क्यों हुआ, और शायद इस गलती से हम क्या सीखे हैं। सो वेलकम टू माय वीडियो on my channel, and this video is all about my experience on my first speech in front of real panel members. So let's just start this video. If you want, no, if you have to, don't want. You have to subscribe this channel, hit the like button, and share with your friends. Those who want to become a future businessman, entrepreneur, and a founder. So let's just start this video. Let's move forward. मैं इस पिच को लेके काफी सीरियस था। स्लाइड रेडी था, प्रेजेंटेशन रेडी था, स्क्रिप्ट भी रेडी था, और मुझे लग रहा था दिस टाइम आई प्रिपेयर्ड वेल। और सच में हाँ, लिटरली हम उस पे महीनों तक एफर्ट डाले हैं। सो आई नो कि अंदर से एक फील आता है कि हाँ, शायद हो जाएगा, इस टाइम तो हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस थिंग्स इन अ रियल लाइफ। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस। सो इसमें ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि एग्जाम से पहले तुम ऐसा सोचते हो कि लाइक आई एम प्रिपेयर्ड, मैंने पूरा पढ़ लिया है, कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। बट एग्जाम से पहले ऐसा होता है, क्या कुछ कुछ रह गया? वो रियल टेस्ट पेपर में दिखता है। एग्जाम से पहले सबको ही लगता है कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट वो जो लास्ट मोमेंट होता है जब वो क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, देन यू गेट टू नो लाइक तुम अभी उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, शायद वो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो लास्ट मोमेंट में तो जो क्वेश्चन छोड़ के आए हो वो उस पेपर में है। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग आई फेल्ट एट दैट मोमेंट। बट ऐसा हुआ क्यों? क्या मिस्टेक था मेरा? आई 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 थिंक लाइक वो गलती मेरा ही था बिकॉज आई एम नॉट दैट मच क्लियर अबाउट दैट होल टॉपिक। Maybe I didn't do lot of research about that topic. But एक सिंपल मिस्टेक शायद उनका भी था। अगर हम उनके जगह पे होते, पैनल मेंबर की जगह पे होते, और पैनल मेंबर मेरे जगह पे होते, अगर वो सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे होते, सेम मिस्टेक कह रहे होते, then I say like you have to modify it, you have to refine it. This is not proper, and I know this is your first time you are here, and I know I have experience. Just think about like I am there. Okay. So this is your first experience. So I am telling you have to refine these points. And you have to prepare like kind of this kind of thing. But they didn't show anything. They didn't say anything. They didn't say anything about that my whole script, my pitch. They only tell me about like they only told me like you have to, your vision is so big. You directly want to compete with the big higher companies, big firms, and this is very much difficult about this. Let it simple, like I am focusing on a small part of the business, a small part of the global market, but they are comparing me. I don't have any idea, but they are comparing me with the large firms, those top 5 companies, those who are making billions, trillions, more than trillions. So it's a kind of like, I don't like the judgment kind of thing. Here how they do, how they perform as a mentor. So I don't like that part only, but they give me feedback like on my life, how I have to move forward, leaving this whole thing. So I like that part, but that's my one concern about this whole topic, like how they have to manage it, because they are seniors, bro, and they have to like they can't like किसी को ऐसा feel नहीं करा सकते कि like you don't have that much potential right now as a student. If you are a student and you don't have right now this much potential,
हेल्प कर सकते थे, यू जैसे समझा सकते थे कि यू हैव अपॉर्चुनिटी बट यू हैव टू फोकस इन दिस एरिया सो दैट यू गेट मोर नॉलेज, more information, and collect it and refine it and make it more interesting. Then we will see it in a different way. ऐसा हो सकता था, but it's fine. Hey, bhai, I told my whole story in this just whole 2 or 3 minutes. So let's move forward. What I did. I am only like हम बस उनका वो गिना रहे, गलती गिना रहे. I'm not talking about my mistake. I also did mistake because I didn't do lots of, but it's required a lot of research. I didn't do. So it's my mistake. I didn't define the proper problem statement so that's why they get confused and they start comparing me with that last forms. So my mistake. I did also mistakes and mistakes. So it's my mistake also. So let's move forward and let's see what kind of mistake I did in that panel. So let's count my mistake. What I did. So first mistake I did is I memorized things. I don't have had any clear confident on slides, like if they close that slide, what I did, what I do, what I am going to do. I don't have that much idea at that moment. ऐसा अगर बंद कर देते वो तो हमको ऐसा लगता कि लाइक कुछ तो ऑफ है, लाइक कुछ मिल ही नहीं रहा है. हम शायद एक्सप्लेन ना कर पाते, अपने ही आइडिया को क्लियरिफाई नहीं कर पाते कि हाउ इट्स गोना वर्क. सो पहला मिस्टेक था कि आई मेमोराइज द होल स्लाइड एंड हम उसको देख के पढ़ रहे थे. And that one panel member also said, if you have to read these slides, we are also able to read it. And at that moment, you guess like, मेरा reaction कैसा होगा? But that's a genuine, like I first time like I like think like I don't have that much confident. I'm not that much confident enough to think or say directly to the panels without reading the whole slides. It means I don't have enough ideas about my own idea. It's contradicting, right? Okay, leave it simple, make it simple. कि just हम वहां से स्लाइड देख रहे थे और पढ़े जा रहे थे कि हाँ ये है एंड ये होना है. That's it, nothing else. That's my first mistake, what I did. So you not gonna do the same mistake. So that's the main problem where I didn't explain what I want. What I explained is what I explained to them, like what's the problem, what's all about the problem, not what I want to do. उनको चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, और हम एक्सप्लेन कर रहे थे ये प्रॉब्लम क्या है, मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, मार्केट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, और उनको चाहिए था तुम क्या करने वाले हो इस मार्केट के लिए. सो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट. So that's my first mistake. So let's move to our second mistake. And as I told you, my second mistake is I practice in a comfort. I practice in a comfort, not in a pressure. And that's my second biggest mistake, what I did. क्योंकि वहां पे in real, as I told you, I practiced for a month. So as a month, so यहाँ पे एक problem ये था कि हम खुद से प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक लैपटॉप पे पीपीटी देखा, पीपीटी को पढ़ा एंड देन हो सका ज्यादा से ज्यादा 2-4 बार उसको रिपीट किया, मिरर के सामने बोल दिया, और एक पर्सन के सामने जिसके साथ हम कंफर्टेबल उसको जस्ट बोला, उसको एक बार सुनाया, जस्ट उसके सामने रिपीट किया एंड देन दैट्स इट, नथिंग एल्स. कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे अराउंडिंग हम उन्हीं लोगों को चुने, हम वैसे ही इन्वायरमेंट में थे जहां मेरे पास कंफर्ट था. I'm not ready for the pressure what they want, they are giving me at that moment. So वो moment हम चूक गए, वो moment रह गया. So I prefer from now onwards when I will going for something, so I will prefer the pressure kind of thing, what kind of pressure I have to handle, because they always put you in the pressure situation so that you get your good, so that they know you more and how you are going to handle the pressure situation, that situation in which you are pressurized from the others. So ये वो पार्ट होता है कि लाइक so नहीं, यहाँ पे बस ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर रखो
and try to learn, go beyond your comfort, and take some pressure on your mind so that you didn't feel pressurized at that moment. So let's move to our third mistake. And my third mistake is I am trying to sound smart. And this is my सबसे बड़ा mistake जो I did there. So what I did, like, I just sound like I am using very much difficult words. I'm not clear enough, or using trying to. I just use a polished kind of sound and tone. एंड उसमें जो वर्ड्स था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, शायद हम उस समय प्रोनाउंस भी ना कर पाए, वैसा काइंड ऑफ वर्ड यूज कर रहे थे। और वो सारा ज्यादातर पीपीटी में लिखा था, और उसको हम जस्ट वो सिंप्लीफाई करने के चलते कि और इजी एंड सॉर्टेड बन जाए वो, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट था एंड आई हैव टू मींस कंप्लीट द होल थिंग इन 10 मिनट्स। सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन द सिंगल वर्ड। और वो वर्ड्स थोड़ा जैसे ही हम सारे वर्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड्स में डालते हैं, एक सारे सेंटेंस को कंबाइन करके सिंगल वर्ड में डालते हैं, इट बिकम कॉम्प्लेक्स। हाँ, जब हम ऐसा होता है, हमको मालूम है, तुम लोग भी जानता होगा। सो लाइक उसको छोटा करने पे वो कॉम्प्लेक्स वर्ड हो जाता है। एंड आई ट्राई टू साउंड लाइक दिस, लाइक उसको कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलने में भी थोड़ा सा एफर्ट लगता है। आई एम इंडियन एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, वहां पे प्रोनाउंसिएशन एरर होता है। So at that moment, maybe I didn't clear about that words, and also I tried to sound more polished, like जैसे सब रट के आया, रट्टा तोता था। So that's the third biggest mistake what I did there. So let's move to our fourth mistake. And my fourth mistake is I am focusing on slide, not on my thinking. They wanted what you are thinking, just tell me. And what I am giving to them, like, these are the things I put in a slide, and I have to tell this to you. That's it. Nothing else. And that's become a bigger mistake for me. उनको चाहिए था कोई एक ऐसा इंसान जो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर ले, हर एक सिचुएशन को सिंप्लीफाई करे अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, ना कि वो कहीं पीछे कुछ पढ़ के बोल रहा हो कुछ। अब ऐसा उनको चाहिए था खुद का दिमाग लगाए, वो चैट जीपीटी ना करे, वो कुछ ऐसा ना करे, वो खुद का दिमाग लगा के कुछ ऐसा इम्प्रूव, कुछ ऐसा यूनिक तो नहीं कहेंगे, बट कुछ अपना माइंडसेट यूज करे, ना कि किसी और के कहने पे और चैट जीपीटी पे पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डिडंट कॉपी फ्रॉम चैट जीपीटी। उसको भी बनाने में आई टेक 2 days टू कंप्लीट द होल स्लाइड, और वो स्लाइड कुछ 7 slides थे। सो उसको भी बनाने के लिए आई टेक 2 days, नॉट 7, 2 days आई टेक टू कंप्लीट द होल थिंग। सो उसमें मेरा एफर्ट था ब्रो, बट वो एफर्ट शायद हम सच्ची में बताए वो एफर्ट क्लियरिफाई नहीं था, क्योंकि आई ट्राई टू साउंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स पॉलिश्ड, कंसाइज करना बड़े बड़े सेंटेंस को। सो वो थोड़ा अजीब हो चुका था, और आई नो व्हाट आई हैव टू डू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ आई एम गोना फिक्स दिस फॉर माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस एंड ऑल। लेट्स मूव। एंड देन आई रियलाइज कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम कितना स्लाइड्स बनाए और कितना टाइम इन्वेस्ट किए उस पर। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि तुम किस चीज से बच रहे हो। प्रेजेंट करने का मतलब होता है कि तुम किस चीज से बच रहे हो। वहां पे तुम्हारे थॉट प्रोसेस दिख जाता है कि तुम क्या इग्नोर करना चाह रहे हो। और उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं डिस्कम्फर्ट से बच रहा था, मैं डिस्कम्फर्ट से बच रहा था, मैं क्लियरिटी से बच रहा था। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपने आप को लेवल अप करने से बच रहा था। थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट किया जा सकता था, बट नहीं किया। दैट्स माय मिस्टेक। कोई बात नहीं, बट ऐसा कभी कभी अपने आप को एक डिस्कम्फर्ट में रखे, कभी कभी अपने आप को एक कंफर्ट में रख के कुछ ऐसा लगता है कि शायद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। सो दैट्स अ प्रॉब्लम व्हाट आई रियलाइज एट दैट मोमेंट, कि तुमको थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए, तुमको अपने आप कंफर्ट से बाहर निकल के थोड़ा प्रेशराइज सिचुएशन में आना चाहिए, एंड थोड़ा और तुमको रिसर्च करना चाहिए, टाइम फोकस करना चाहिए, और उस हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए जिस हिसाब से तुम लोगों के पास जा रहे हो। जिस लोग के पास जा रहे हो उस हिसाब से मॉडिफाई करो, सो दैट व्हाट दे वांट दे सी इन योर स्लाइड्स। वो क्या चाहते हैं वो तुम्हारे स्लाइड्स में देख सके, लाइक क्या उनके लिए सही है, क्या तुम उनको क्या दे सकते हो।
So that's my realization. And अब ऐसा क्या है जो हम सीख चुके हैं उस प्रेजेंटेशन के बाद, उस पिच के बाद? तो अब हमको ऐसा लगता है कि अब हम चीजों को, अब ऐसा ही है कि अब हम चीजों को याद नहीं करते, अब हम ज्यादातर उसको समझने का कोशिश करते हैं। अब हम चीजों को के अंदर ज्यादा क्लियरिटी ढूंढते हैं कि इसका और डेप्थ में क्या आंसर हो सकता है, इसको अगर कोई हमसे पूछ दिया तो हम क्या जवाब देंगे। और हम सेकेंड थिंग कि लाइक अब हम वो अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखते, क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना जरूरी है। तो अब हम मोस्टली लोगों से ट्राई करते हैं कि थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में जाके उनसे बात करें, उनसे थोड़ा सा ऐसा घुले मिले, सो दैट आई बिकम मोर कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम किसी को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं सोचते, लाइक कि हमको इसको इस बातों से इम्प्रेस करना है। एक स्क्रिप्ट लेके जाओ, उसको पढ़ दो, उसको रट दो, वैसा वाला नहीं। अब वो हमको समझ में आया उसके बाद कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुमको हार्ड और पॉलिश वर्ड चाहिए रहेगा। तुम अपने थिंकिंग पावर से, तुम अपने नॉलेज से इम्प्रेस कर सकता है किसी को। सो दैट्स द थिंग। एंड द फोर्थ थिंग इज लाइक ऐसा ऐसा हम सोचते हैं कि लाइक अगर स्लाइड्स नहीं रहेगा तो क्या हम इसको क्लियरिफाई कर पाएंगे, क्या हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे उनके सामने? इफ यस, then I am ready for that. So that's the whole thing, what I do, what I am going to do, what I am going to do. So these are the things I have to fix. I just fix it after that pitch and I have to improve it a lot. शायद तुम भी किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, शायद कोई एग्जाम के लिए, शायद वो कोई प्रोजेक्ट के लिए, या फिर शायद एक नेक्स्ट स्टेप के लिए जो तुम अपने लाइफ में लोगे। तो तुम खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना, क्या तुम उसको समझ रहे हो? क्या वो तुम्हारे लिए क्लियर है, या बस तुम याद कर रहे हो, रट रहे हो? और दूसरा सवाल कि क्या तुम अपने आप को एक रियल सिचुएशन में डाल रहे हो? क्योंकि कोई भी ऐसा सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आता है, कोई भी थोड़ा पैनिक करता है, थोड़ा नर्वस होता है, थोड़ा वो प्रेशराइज फील करता है, एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल किसी के लिए भी। और वो कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए वो थोड़ा ज्यादा हो, किसी के लिए वो थोड़ा कम हो। वो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि तुम कितने एक्सपीरियंस हो उसके लिए, उसको लेके। तो दैट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। सो एंड द थर्ड थिंग इज, क्या तुम बिल्ड कर रहे हो और या फिर बस फील कर रहे हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम रियली यू वांट टू बिल्ड इट, और जस्ट तुम फील करना चाहते कि हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं। So that's all. That's the all of the thing what I want to tell you. What you have to ask you while you are preparing for something, while you are going for something, you have to ask these things to yourself so that you get more clarity on your vision, on your presentation, on your ideas. कभी कभी हम लोग फेल इसलिए नहीं हो रहे होते क्योंकि हम लोग एफर्ट नहीं डाल रहे होते। कभी कभी हम लोग फेल इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हम लोग एफर्ट गलत जगह पे डाल रहे होते हैं। एंड ये समझने के लिए मुझे एक पिच लगा, वो पिच मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था। शायद वो लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता, बट अच्छा था, कुछ तो अच्छा सीखे जो हम इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट पिच में, नेक्स्ट आइडिया में, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसा कुछ करने जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक इट, if you like the experience, if you want to share something, just comment below and hit the like button, press the subscribe button, and share with your friends who want to become a businessman, entrepreneur, and founder of some companies. They have those who have future plans. So share with them, and once again subscribe it, like it. Thank you all. Thank you so much for watching me and listening. This is the whole story. If you came till the end. Thank you so much.